محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ بالکنڈہ الخط عملی میں ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے طوفانی دورہ کرتے ہوئے فوت ہونے والے قائدین کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسہ۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی نظام آباد کا مشاورتی اجلاس ہر 2023 کے لیے فارم کی خانہ پوری کر والے فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 مارچ متعین۔ مزید تفصیلات کے لیے دفتر ہیلتھ سوسائٹی ضلع نظام آباد مستعد پورے سے حاصل کریں، ذمہ داران کی اپیل۔ شہر نظام آباد کے تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشل اسکول و کالج کا DLSA سیکریٹری و سینئر سول جج پدماوتی نے اچانک منفی عمل کیا۔ خانگی کالج کے بالمقابل گورنمنٹ کالج میں بہترین نتائج حاصل کرنے کا کاماریڈی گورنمنٹ جونیئر کالج کی سالانہ تقریب، مقامی ایڈیشنل کلکٹر وینکٹیش دھاتورے کا خطاب۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے فتنوں سے عوام کو آگاہ کرنے و ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر عالم دین آگے آئے۔ جامعۃ علماء ضلع صدر حافظ لئی خان 15 فروری کو بعد نماز ظہر کلاسک فنکشن ہال میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیلی جانب۔ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے فتنوں سے عوام کو آگاہ کرنے و ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر عالم دین آگے آئے۔ جامعۃ علماء ضلع صدر حافظ لئی خان 15 فروری کو بعد نماز ظہر کلاسک فنکشن ہال میں منعقدہ کل جماعتی اجلاس کو کامیاب بنانے کی اپیل۔ بات سے بخوبی واقف ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت کے قریب بہت سے ارتدادی فتنے وجود میں آئیں گے جو اپنے آپ کو اہل ایمان بتا کر ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، ایمان پر حملہ کریں گے۔ جیسا کہ آج کل چل رہا ہے، سب سے زیادہ فتنہ شکیل بن حنیف اور فتنہ فیاض کا، جو دیندار قسم کے مسلمانوں میں ارتداد پھیلا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ان کو بدگمان اور بدظن بدعقیدہ کر رہے ہیں۔ اسی کے پیش نظر ہم اپنے ایمان کو کیسے بچائیں، اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کریں، اس سلسلے میں چہارشنبے کے دن بروز چہارشنبہ 15 فروری بعد نماز ظہر متصلاً کلاسک فنکشن ہال میں ایک کل جماعتی اجلاس مدعو کیا جا رہا ہے، اور اس کا جمعیت علماء کے اور ختم مجلس تحفظ ختم نبوت نظام آباد کے اراکین دعوت نامے لے کر آپ تک پہنچیں گے۔ اگر کسی کے پاس یہ دعوت نامہ نہ پہنچا بھی ہو تو وہ ہماری اس بات کو، ہمارے پیغام کو دعوت نامہ سمجھ کر اس میں شریک ہوں، تاکہ ہم اپنے اپنے حلقے احباب کے تک یہ فتنوں کے بارے میں واقف کرا سکے، اور اپنے اپنے حلقے احباب اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کر سکے۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ اور تمام کیا کہیں گے سیاسی جماعتوں سے وابستہ اور شہر میں مختلف قسم کے سماجی، سیاسی، مذہبی، ملی خدمات انجام دینے والے تمامی افراد سے میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ اس اجلاس میں شریک ہوں، تاکہ ہم آئندہ اس قسم کے فتنوں سے امت کی حفاظت کے لیے ہم اس کے ذریعہ بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نظام آباد کا مشاورتی اجلاس حج 2023 کے لیے فارم کی خانہ پوری کروا رہے. فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 مارچ متعین. مزید تفصیلات کے لیے دفتر حج سوسائٹی ضلع نظام آباد مستعد پورہ سے حاصل کریں. ذمہ داران کی اپیل. آج ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نظام آباد کا ایک اہم اجلاس دفتر مستعد پورہ پر عمل میں آیا، جس میں صدر ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی مولانا سید عابد قاسمی اور جنرل سیکرٹری محمد حبیب احمد نے کہا کہ حج 2023 کے لیے فارم خانہ پوری کا آغاز 10 فروری 2023 سے ہو چکا ہے اور اس کی آخری تاریخ 10 مارچ 2023 متعین کی گئی ہیں. اسی لیے ضلع نظام آباد کے عازمین حج سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پاسپورٹ، آدھار کارڈ، پین کارڈ، بینک اکاؤنٹ کی کاپی، کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، ایک تازہ پاسپورٹ سائز فوٹو، نام، پتہ، فون نمبر، بلڈ گروپ لے کر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے آفس واقع قدیم مکان سلطان بردرز مستعد پورہ پر فارم کی خانہ پوری فرما لے. اوقات دفتر صبح 10 تا شام 5 بجے رہے گا. مزید تفصیلات دفتر سے حاصل کرنے کی اپیل. اس اجلاس میں طارق انصاری نائب صدر، سید ذکی الدین انچارج کارپوریٹر، ساجد صاحب، گل خان صاحب، مفتی عبدالرحمان صاحب و دیگر موجود. کہ حج بیت اللہ کو جانے والے کافی عرصے سے حج کی تاریخ کے لیے، حج کے فارم کے لیے بے چین تھے اور مسلسل فون آ رہے تھے کہ حج کی کارروائی کب سے شروع ہونے والی ہے. تو اس لیے الحمدللہ حج 2023 کی کارروائی پورے ملک میں شروع ہو چکی ہے. اس لیے ضلع نظام آباد سے 2023 میں حج کو جانے والے عازمین اور عازمات اس بات سے مطلع ہو جانا چاہیے کہ 10 فروری 2023 سے فارم آن لائن کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کی آخری تاریخ 10 مارچ 2023 ہے. اس لیے ضلع نظام آباد اور اطراف اور اکناف میں رہنے والے احباب نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر جو مستعد پورہ اور قدیم مکان سلطان برادرز پر خادم الحجاج جو ہے آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت یہاں پر دستیاب ہیں. اس لیے جو احباب بھی 2023 میں حج کا ارادہ رکھتے ہیں نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر پر اپنے تمام دستاویزات کو لے کر، جیسے پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، بینک پاس بک ہے اور اسی طرح پین کارڈ ہے اور بلڈ گروپ ہے، یہ تمام دستاویزات ورجنل لے کر دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی پر آپ تشریف لائیں گے تو الحمدللہ حاجیوں کے جو خدمت گزار ہے، خادم الحجاج ہیں، آپ کی مکمل خدمت کرنے کے لیے اور اسی طرح حج کو جانے تک اور حج سے واپسی تک آپ کی خدمت کے لیے نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے والنٹرز تیار ہیں. تو اس لیے 10 مارچ 2023 سے پہلے اپنے حج کی کارروائی کو مکمل فرما لیں. ڈویژن نمبر 12 میں آنکھوں کی روشنی کیمپ کے اختتام کے موقع پر مقامی کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے اس کیمپ میں اپنی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز و اسٹاف کی تہنیت عمل میں لائی. حکومت کی جانب سے جاری آنکھوں کی روشنی کیمپ کا گزشتہ ایک ماہ سے شہر کے ڈویژن نمبر 12 کے اخلاقی اسکول گرلز میں ڈویژن نمبر 12 میں ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ آنکھوں کی روشنی کیمپ مسلسل جاری تھا، جس سے اس علاقے کے غریب عوام نے استفادہ حاصل کیا اور اپنے آنکھوں کی کمزوری یا ان کے مسائل کا ڈویژن میں موجود اخلاقی قامتی اسکول گرلز میں اپنا علاج کروایا. گزشتہ روز اس کیمپ کا اختتام عمل میں آیا، جس کے مد نظر مقامی مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے اس کیمپ میں اپنی خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز و AMN اسٹاف کی اپنے دفتر پر تہنیت عمل میں لائی اور ان کی خدمات کی ستائش کی. اس موقع پر ڈاکٹر لکشمن راؤ، کیمپ آفیسر ڈاکٹر مختار حسین، ڈاکٹر قمر پاشا، مرزا عظمت اللہ بیگ کے علاوہ آشا ورکرز و دیگر موجود تھے. اللہ وبرکاتہ. جو گورنمنٹ کے طرف سے کنٹی ویلو پروگرام جو رکھا گیا تھا میرے ڈویژن نمبر 12 میں KK گارڈن میں جنوری 19 سے لے کر 13 فروری تک چلا. الحمدللہ اس پروگرام میں
जो आँखों का महीने के लिए जो आँखों की जो बीमारी है, किसी को गिलास का जो चेकअप कराने का था, चेकअप के बाद जिसको जो गिलास लगेगा, जो माइनस है, रीडिंग गिलास वालों को दिया गया। टोटल हमारे पास 2462 लोगों को मुआयना किया गया, जिसमें रीडिंग गिलासेस 465 दिए गए और माइनस गिलास जो मैंने गिलास है उसको 162 गिलासेस है, उसको ऑर्डर किया गया। 146 लोग शहर के डिवीजन नंबर 32 में वाक़ई नाइस गेस्ट हाउस में आंखों की रोशनी कैंप का मुकामी इंचार्ज मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद के हाथों आगाज। हबीब नगर खोजा कॉलोनी की अवाम इस कैंप से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत डिवीजन नंबर 32 के नाइस गेस्ट हाउस में आज मुकामी मजलिस इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद साबिक फ्लो लीडर के हाथों कैंप का इख्तिताम अमल में आया। मोहम्मद रियाज अहमद ने डिवीजन नंबर 32 के इलाके हबीब नगर खोजा कॉलोनी इस्लामपुरे की अवाम से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत की स्कीम आंखों की रोशनी से 100% इस्तिफादे के जरिए आंखों के मुआयने कराए और मुफ्त अद्वियात के अलावा ऐनक हासिल करें। इन्होंने बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम में बाहर डॉक्टर्स तशखीस के बाद मुफ्त अद्वियात देंगे और ऑनलाइन इंदराज के जरिए ऐनक फराहम किया जाएगा। मोहम्मद रियाज अहमद ने बताया कि नाइस गेस्ट हाउस में आंखों की रोशनी प्रोग्राम 14 फरवरी तक 14 मार्च मुकम्मल 1 माह तक जारी रहेगा। इन्होंने कहा है कि यहाँ मौजूद मेडिकल ऑफिसर सबा परवीन, PHC मेडिकल ऑफिसर मधुसूदन, ऑप्टोमेट्रिस्ट जेबा अस्करी की जानिब से दी जाने वाली खिदमात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। కంటి వెలుగు 2 భాగంగా ఈరోజు మనం కోజా కాలనీ హబీబ్ నగర్ ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఏరియాకి సంబంధించి ఇక్కడ మనం నైస్ గెస్ట్ హౌస్లో కార్పొరేటర్ గారు రియాజ్ గారు ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది। ఈరోజు ఈ డైలీ మార్నింగ్ 9 to ఈవినింగ్ 4 వరకు మేము కంటి వెలుగు క్యాంప్ నిర్వహిస్తాము। ఈ కంటి వెలుగు క్యాంపులో డైలీ 150 మెంబర్స్ వరకు చేయడానికి మేము వీలు ఉంటాము। अस्सलाम वालेकुम जी, अभी कंटी वेलगू 2 का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है हबीब नगर में, खोजा कॉलोनी और हबीब नगर और फ्रूट मार्केट 3 को कवर करेंगे। आज 14 से मार्च 14 तक ये प्रोग्राम चलेगा यहाँ पे सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। जिसकी दूर की नज़र, करीब की नज़र, दूर की नज़र के लिए जब भी आपको चेक करके चश्मा दिया जाएगा। आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए, आप लोग सब लोग आके आप इसका फ़ायदा उठाइए। आप लोग आपके आंखों की रोशनी के लिए आप लोग चेक करवाने के लिए आइए। IUML के वफद की जिले सरकारी हॉस्पिटल असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सरस्वती मैडम से मुलाकात। वो हॉस्पिटल में MRI व CT स्कैन की सहूलत की फराहमी के लिए की नुमाइंदगी। आज IUML के एक वफद ने रियासती नायब सदर शेख मुजाहिद, शहरी सदर मुर्तजा हुसैन, नायब शहरी सदर मोहम्मद फारूक और शहरी मोतमिद मोहम्मद सलीम की क़यादत में निज़ामाबाद जिले सरकारी हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट सरस्वती मैडम से मुलाकात और हालात का जायजा हासिल किया और जिले सरकारी हॉस्पिटल में MRI CT स्कैन की खिदमात को बहाल करते हुए नए मशीनों के क़याम के लिए नुमाइंदगी की और कहा कि इन आलात के न होने के सबब अवाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस पर इन्होंने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। BRS BJP हुकूमतों के खिलाफ इख्तिदार मुखालिफ लहर चल रही है। कांग्रेस अगले असम्बली इंतखाबात में इख्तिदार में वापस आएगी। कामारेड्डी में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से साबिक़ा वज़ीर मोहम्मद शबीर अली का खिताब। साबिक़ वज़ीर और तेलंगाना कानून साज कौंसिल में अपोजिशन के साबिक़ लीडर मोहम्मद अली शबीर ने मंगल को दावा किया कि लोगों में BRS और BJP हुकूमतों के खिलाफ इख्तिदार मुखालिफ लहर फैल रही है और ये कांग्रेस पार्टी को अगले वक्त में इख्तिदार में वापस लाएगी। असम्बली इंतखाबात वो आज कामारेड्डी के कई इलाकों में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम में हिस्सा लेने के बाद कांग्रेस जिले हेडक्वार्टर पर मीडिया से बात कर रहे थे। TPCC महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और कई सीनियर कायदीन ने भी पद यात्रा में शिरकत की। शबीर अली ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को रियासत तेलंगाना में जबरदस्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का बुनियादी मकसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से दिए गए इत्तेहाद और भाईचारे के पैगाम को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पहुंचाना था। जब हमने घर घर पद यात्रा के दौरान लोगों से मुलाकातें शुरू की और बातचीत की, हमने देखा कि इनके दरमियान एक बहुत बड़ी मुखालिफ हुकूमत की लहर चल रही है। कांग्रेस पट्ल పేద ప్రజలకు కానీ ప్రజలకు ఈ రోజు హాజరు ప్రోగ్రాంలో మేము తిరుగుతున్నప్పుడు చాలా మంచి స్పందన వస్తుంది। మేము డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది లేడీస్ చాలా సంతోషంగా ఉత్సాహంగా మమ్మల్ని పిలిచి మాట్లాడి మాతో చెప్పడం ఏం జరుగుతుందంటే ఈ BRS కానీ BJP కానీ ఈ
రెండు ప్రభుత్వాలు చేసే మోసాలు, ఈరోజు ఒక పూట తిండి తినలేని పరిస్థితి పేదవాళ్ళకి ఈరోజు వచ్చింది అంటే చాలా దరిద్రమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాము. ఈరోజు రేషన్ కూడా రావట్లేదు ప్రాపర్గా. ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే కానీ ఇక్కడ डिवीजन नंबर 13 धर्मपुरी हिल्स में आंखों की रोशनी प्रोग्राम, अवाम भरपूर इस्तेफादा करें, मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान की अवाम से अपील। आंखों की रोशनी प्रोग्राम के तहत डिवीजन नंबर 13 धर्मपुरी हिल्स में मुकामी कॉर्पोरेटर मोहम्मद हारून खान ने कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर हारून खान ने इलाके की अवाम से ख्वाहिश की कि वो हुकूमत की स्कीम आंखों की रोशनी से 100% इस्तेफादे के जरिए आंखों के मुआयने कराए और मुफ्त अद्वियात के अलावा ऐनक हासिल करें। इन्होंने बताया कि आंखों की रोशनी प्रोग्राम में माहिर डॉक्टर तशखीस के बाद मुफ्त अद्वियात देंगे और ऑनलाइन इमराज के जरिए ऐनक इस्तेफादा कुनंदगान के घर तक पहुंचाई जाएगी। हारून खान ने बताया कि धर्मपुरी हिल्स में आंखों की रोशनी प्रोग्राम आज से 24 फरवरी तक जारी रहेगा। 25 तारीख से 10 दिन तक सारंगपुर इलाके में और डायरी फोरम इलाके में 5 दिन के लिए मुनक़िद किया जा रहा है। मोहम्मद हारून खान ने कहा कि गरीब मुस्तहिक़ अवाम के लिए आंखों की रोशनी प्रोग्राम एक बड़ी सहूलत है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने और मुआयने करवाने का इन्होंने अवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर कसीर तादाद में धर्मपुरी हिल्स के मर्द व ख़वातीन मौजूद थे। आज डिवीज़न नंबर 13 में कंटी वेलक्यू प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया है। ये प्रोग्राम गरीब आवाम के लिए फ़ायदेमंद है और डिवीज़न नंबर 13 में 25 दिन है, जिसमें 10 दिन धर्मपुरी हिल्स, 10 दिन सारंगापुर, 5 दिन डेयरी फार्म में रखा गया है। क्यों तो पब्लिक यहाँ से वहाँ आने में लिए परेशानी होती है, इसलिए 10 दिन यहाँ 10 दिन वहाँ रखे। और मैं डिवीज़न नंबर 13 की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करें। आँखों की बीनाई के लिए चश्मे मुफ्त दिए जा रहे हैं, दवाएँ दी जा रही है। ये CM साहब के हिसाब से प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक इससे फ़ायदा हासिल करें। तो धर्मापुर हिल्स में 14 तारीख से 27 तारीख तक है, 10 दिन का प्रोग्राम है। और डेयरी फार्म में 28 से 6 तारीख तक है। सारंगापुर में 8 तारीख से 21 तारीख तक प्रोग्राम रखा गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आके इससे फ़ायदा हासिल करें। शहर के तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज P पद्मावती ने किया मुशाहिदा। शहर निजामाबाद में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल व कॉलेज बॉयज़ का DLSA सेक्रेटरी और सीनियर सिविल जज P पद्मावती ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए स्कूल के ट्रैफिक नाफ माहौल कमरे जमात के अलावा स्टोर रूम किचन रूम का जायजा लेते हुए बच्चों से बात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल करने के बाद असातिज़ा साहिबीन को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल G शिवता, एडवोकेट ज़िशा नज़वी, शाहिद राजा, SLC, असातिज़ा साहिबीन व DLSA स्टाफ ने शिरकत। जिले टियार सदर आलमुर मिले जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में आलमुर हल्के से वाबस्ता TRS कायदीन ने की मुलाकात। आलमुर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले टियार सदर जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में आलमुर हल्के से वाबस्ता BRS पार्टी के कायदीन ने मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल से वाकिफ करवाने के फौरी बाद जिले टियार सदर आलमुर मिले जीवन रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में KCR हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद गरीब खवातीन व डॉक्टर संगम से वाबस्ता खवातीन की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को मुतारफ करवाते हुए माली तौर पर मुस्तहकीम करने की कोशिश करने वाले CM KCR निजामाबाद रूरल MLA बाजेडी गोवर्धन को खवातीन की जानिब से किया गया इजहार तशक्कुर। इंदलवी मंडल के मुकाम पर क़याम अमल में लाए गए इजलास में मंडल महिला सदर वसंता की ज़ेरे निगरानी में इजलास का क़याम अमल में लाया गया। इस मौके पर BRS पार्टी महिला सदर वसंता व मंडल महिला सदर सुजाता ने मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरतर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR के इख्तिदार पर फायज होने के बाद रियासती हुकूमत खवातीन की तरक्की को तरजीह देते हुए इनकी तरक्की के लिए बैंक लोन, स्त्री निधि खर्चात के अलावा महिला संगम को खर्चात की मंजूरी अमल में लाते हुए माशी तौर पर मुस्तहकिम बनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में TRS मंडल सदर वसंता, मंडल महिला सदर विनोदा, मंडल सदर करुणा, महिला संगम से वाबस्ता मेम्बरान ने शिरकत की। హస్తం రాలేదంటారు సార్, వస్తుంది ఎందుకు రాదు, అదే నడుస్తుంది సార్ మీటింగ్లలో ప్రతి మీటింగ్లలో అది జరుగుతుంది. జనరల్ మీటింగ్లో అది మొన్న ఆల్రెడీ జరిగింది, సంతకాలు కూడా అయినాయి సార్, కానీ టైం పడుతుంది కొంచెం అంతే తప్ప వడ్డీ రాలేదు, వడ్డీ పావల వడ్డీ కూడా వస్తుంది। एडिशनल कलेक्टर के तौर पर B चंद्रशेखर जिले के ओहदे का जायजा लेकर 3 साल मुकम्मल होने के पेश नज़र बरोज़ी पीर जदीद कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद।
एडिशनल कलेक्टर के तौर पर बी चंद्रशेखर जिले का ओहदा का जायजा लेकर 3 साल मुकम्मल होने के पेश नजर बरोज़ पीर को जदीद इंटीग्रेटेड कलेक्टर दफ्तर में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने मुलाकात करते हुए फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर कलेक्ट्रेट में AO प्रशांत, DMNHO डॉक्टर सुदर्शना, DCO सिंहाचलम, SC वेलफेयर डेवलपमेंट ओहदेदार शशिकला, DPO जयसुधा, SC कॉर्पोरेशन ED रमेश, DCW नागुराव, महकमे लेबर ऑफिसर यूहान, DSO चंद्र प्रकाश, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट लक्ष्मण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। रियासत में जारी बदउनवानी व गैर कानूनी कामों को कानूनी शक्ल देने का एड़पली मंडल के धर्माराम व MSC फोरम देहात में मुनाकिदा हाथ से हाथ जुड़ो प्रोग्राम से साबिका वजीर P सुदर्शन रेड्डी का खिताब। एड़पली मंडल के धर्माराम व MSC फोरम देहात में मुनाकिदा हाथ से हाथ जुड़ो प्रोग्राम से साबिका वजीर PCC रियासती खजाना P सुदर्शन रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमों में बदउनवानी हो रही है और वज़रा व रुकन असम्बली बदउनवानी में मुलविस है। इसी तरह से दही इलाकों में मियारी छोटे मछलियों के बच्चे वो बीज नहीं दिया जा रहा है और निज़ाम सागर तालाब का पानी किसानों को काश्त के लिए फराहम न होने पर किसान परेशान है। इन्होंने कहा कि तालाबों की दुरुस्तगी न होने की वजह से किसानों को काश्त के लिए पानी दस्तियाब में नहीं है और इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल व अशराफ स्कूलों में मुनासिब सहूलियात न होने के बायस मुश्किल तरीन हालात का सामना करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ PCC नायब सदर ताहिर बिन हमदान, गड़गू गंगाधर, DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, मंडल पार्टी सदर श्रीनिवास जी पोचैया, रविंदर रेड्डी, सूरी बाबू रत्नाकर, इरफान मस्तान व दीगर ने शिरकत की। రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే పాదయాత్ర చేసి 7 నెలలు పాదయాత్ర చేసి చలనకుండా వాదనకుండా ఎండనకుండా వారు ఈ ప్రభుత్వాలు కేవలం స్వార్థాల కొరకే मोरतार मंडल के मरकज में गौड़ा संगम के ज़ेरे एहतमाम जारी एहतजाजी धरने का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया मुशाहिदा। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़े गौड़ा संगम के ज़ेरे निगरानी में सरदार सरावई पापन्ना के मुजस्समे को नस्ब करने का मुतालबा करते हुए कुछ यौम से जारी एहतजाजी धरने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने जारी एहतजाजी धरने का मुशाहिदा करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद एहतजाजी धरने को बर्खास्त करवाया। इस प्रोग्राम में मोरतार MPP शिवालिंगो श्रीनिवास, मौजे के सरपंच भोगा धरनियानंद, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, क़ायदीन, गौड़ा संगम मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। लोकेशन मंडल के पिपरी देहात में NREGS फंड्स के तहत जारी करदा 12 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड के तामीरी कामों का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। लोकेशन मंडल के पिपरी देहात में NREGS फंड्स के तहत जारी करदा 12 लाख रुपए के मसारिफ से CC रोड तामीरी कामों का जिले परिषद साबिक़ सदर लोलम श्याम सुंदर, MPP ललिता गुज्जरना, मंडल से वाबस्ता कायदीन के हाथों आगाज अमल में लाया गया और इस मौके पर सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा CM रिलीफ फंड स्कीम के जरिए मंजूर करदा 45,000 रुपए के CMRF चेक का इसी गाँव के साकिन लतीफ़ पाशा को हवाले किया गया। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद TRS पार्टी बरसर इख्तिदार पर आई और तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव इख्तिदार पर फायज होने की फौरी बाद रूबे अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिला तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इस तरह से मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलपुर मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को फौरी तौर पर पाए तकमील पर पहुँचाते हुए मुकामी अवाम को राहत फराहम की जा रही है। इन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात का किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार। इस प्रोग्राम में सरपंच सैयना, MPTC इमरानी अनिल, मंडल के TRS कायदीन कन्वीनर के श्याम सुंदर, PACS चेयरमैन रत्नाकर राव, सोशल मीडिया सदर बंडी प्रशांत, मौजे में मुक़ीम अवाम व दीगर ने शिरकत की।
नासाज सेहत की वजह से बोयनपल्ली के रिहैबिलिटेशन सेंटर में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने वाले नागमपेट देहात के बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद गणेश से रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए की अयादत। मोबकाल मंडल के मुकाम पर नागमपेट देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस पार्टी के सीनियर मंडल कायद गणेश नासाज सेहत की वजह से सर्जरी करवाने के बाद बोयनपल्ली के रिहैबिलिटेशन सेंटर में शरीक तिबी इमदाद हासिल करने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला पर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने फौरी तौर पर इस मुकाम पर पहुंचकर अयादत करते हुए ज़ाती खर्च से तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने के ताल्लुक से कहते हुए तिबी अमले को मियारी इलाज मुआलजा फराहम करने की ख्वाहिश की। मोरतार मंडल के अलावा मुख्तलिफ देहातों में हाल ही में फौत होने वाले टीआरएस कायदीन के अफराद खानदान से रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी मोरतार मंडल का दौरा करते हुए मोरतार मंडल के बीआरएस पार्टी सदर कल्लेड़ा एलैया के अफराद खानदान के अलावा दोनकल देहात में सोसाइटी चेयरमैन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और इस तरह से गांडला पेट देहात में साबिक़ा सरपंच के अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए हिम्मत अफजाई करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इनके साथ मोरतार एमपीपी शिवालिंगो श्रीनिवास, एमपीडीसी अशोक, आसमा अजहरुद्दीन, सरपंच, अवाम नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के गांधीनगर मज़ाफ़ाती इलाके में खातून के गले से सोने का लच्छा सरखा करने में मुलविस मुजरिमीन को तहवील में लेने का जकरानपल्ली एसआई श्रीकांत का सहाफ़ती बयान। सीआई श्रीकांत ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जकरानपल्ली मंडल के गांधीनगर मज़ाफ़ाती इलाके में खातून के गले से सोने का लच्छा सरखा करने में मुलविस दोनों मुजरिमीन शेख समीर मोहम्मद मुजम्मिल को ब्रह्मनपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली ततवा की शिकायत के मुताबिक तहवील में लेते हुए इनके कब्जे से 2.5 तोले सोना व सेलफोन के अलावा एक पल्सर गाड़ी को जब्त करने का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस के नागराजू ने एसीपी किरण कुमार के ज़ेर निगरानी में मुकदमे को हल करने में डिचपल्ली सीपीआई डी मोहन, जकरानपल्ली एसआई के श्रीकांत व इनके पुलिस मुलाजमीन एम राजेश्वर, जी सरदार व दीगर पुलिस मुलाजमीन की जानिब से फराहम करदा खदमात की सताइश की। लोकेश्वर मंडल के कस्तूरबा स्कूल में बचपन की शादियों की रोकथाम, मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। लोकेश्वर मंडल के कस्तूरबा स्कूल में बचपन की शादियों की रोकथाम, मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के ताल्लुक से शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर असातिज़ा साहिबीन ने खिताब करते हुए तलबा को बचपन की शादियों से होने वाले नुकसानात और मुतवाज़न ग़िज़ा के इस्तेमाल करने से होने वाले फवायद के बारे में इजहार किया। इस प्रोग्राम में सीडीपीओ, सुपरवाइजर श्री लक्ष्मी, कस्तूरबा स्कूल स्टाफ व दीगर मुलाजमीन ने शिरकत की। बीसी को 52% रिजर्वेशन इजाफा करने के लिए जय भीम योजना समाज पार्टी के ज़ेरे निगरानी में 1 करोड़ दस्तखती मुहिम अमल में लाई गई। शहर के खलीलवाड़ी में जय भीम भुजना समाज पार्टी के ज़ेरे निगरानी में निजामाबाद अर्बन हल्के में बीसी को 52% रिजर्वेशन इजाफा करने के लिए 1 करोड़ दस्तखत हासिल करने के तहत 7वें यम 44वें डिवीजन खलीलवाड़ी में दस्तखती मुहिम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बीसी नौजवानों व बीसी कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाया। इस प्रोग्राम में अर्बन हल्के इंचार्ज इन लक्ष्मण, शकील अहमद, गंगाधर गौड़, गंगाधर सूर्यवंशी, लक्ष्मण गौड़ व दीगर ने शिरकत की। ई नाम मार्केट को फौरी तौर पर खोलते हुए फी कुंटल 15,000 रुपए में खरीदारी अमल में लाने का AIPKS रियासती जनरल सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने किया मुतालबा। AIPKS रियासती जनरल सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने कहा कि शाह निजामाबाद के गंज में 1 माह से हल्दी मार्केट यार्ड में आने के बावजूद भी इनाम तरीक़ेकार के तहत खरीदारी का आगाज अमल में ना लाकर हल्दी किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं और इसी तरह से ताजिर व मार्केट अहदेदारों की मिली भगत से आज तक 65,000 कुंटल हल्दी से जायद की खरीदारी अमल में लाते हुए किसानों का इस्तेमाल करने वाले ताजिर का लाइसेंस मनसूख करते हुए कार्रवाई की जाए और ताजिर से मिलते हुए अहदेदारान को फौरी तौर पर ओहदे से बरतरफ करने के साथ साथ ई नाम मार्केट को फौरी तौर पर इफ्तिताह अमल में लाने का अखिला भारतीय प्रगतिशीला ज़राई रैतु संगम के रियासती जनरल सेक्रेटरी वी प्रभाकर ने किया इजहार। వ్యవసాయ మార్కెట్ గంజిని పరిశీలించడం జరిగింది. అనేక లోపాలు దృష్టికి వచ్చాయి. సెక్రటరీ గారితో డిస్కస్ చేస్తే ముందు అంగీకరించలేదు తన లోపాలని, నిర్వహణ లోపాలని, తర్వాత అంగీకరించి సరి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి చెప్పారు. ప్రధానంగా అందులో ఒకటి డిపిసి డైరెక్ట్ పర్చేస్ సెంటరు ఏ పంటకైనా మార్కెట్కి వచ్చిన రోజు నుంచే ప్రారంభం కావాలి. అది మార్కెట్ యొక్క జీవోలో ఉంది, వ్యవసాయ మార్కెట్ జీవోలోనే ఉంది.
वक्त की पाबंदी व सख्त मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करने का रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद जनरल सेक्रेटरी कौमी साइकेट्रिक सोसाइटी डायरेक्टर काउंसिल मेंबर डॉक्टर विशाल का खिताब। शहर के चंद्रशेखर नगर कॉलोनी में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा के इम्तहानात के वक्त ज़हनी तनाव पर काबू पाने के तरीक़ेकार के ताल्लुक से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद जनरल सेक्रेटरी इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विशाल आकुलन तलबा से खिताब करते हुए कहा कि तलबा को इम्तिहानी ज़हनी तनाव पर काबू पाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त हर एक तालिब इल्म मनसूबाबंदी के तहत इम्तिहान का निज़ामुल औक़ात तैयार कर इसके मुताबिक तैयारी करने का इजहार किया। మామూలు టైంలో ఏంటంటే జూన్లోనో జూలైలోనో మీరు దసరా హాలిడేస్ ఎప్పుడు బుక్ ఇస్తే అబ్బా ఒక పేజ్ చదివినా మంచి నిద్ర పోదాం అనిపిస్తుంది. అదే ఎగ్జామ్ ఫిబ్రవరిలో చదివినప్పుడు ఏది టకాటక ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి స్పీడ్గా చదివేస్తాము, మన అలర్ట్నెస్ పెరుగుతుంది. సో కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది మంచిదా చెడా, కానీ దాన్ని మితిమీరినప్పుడు అంటే అదొక లెవెల్ దాటినప్పుడు మనకు జరిగేదాన్ని ఏమంటాము డిస్ట్రెస్ అంటాం. కాబట్టి దానికి లోన్ కావద్దు, యూజ్ స్ట్రెస్లోనే ఉండాలి మనకు। प्राइवेट कॉलेज के बिलमुकाबला गवर्नमेंट कॉलेज में बेहतरीन नताज हासिल करने का मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे का खिताब। जिले कामरेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में सालाना तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे ने शिरकत करते हुए कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज में बुनियादी सहूलियात की फराहमी अमल में लाते हुए माहिर तजुर्बेकार लेक्चरर की जानिब से तदरीस अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल कॉलेज में 580 तलबा मौजूद है। इनकी तादाद को 900 तक बढ़ाने के लिए हर एक लेक्चरर अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोशिश करने का इजहार किया। 72,000 तलबा के मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और इस मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को इनामात की फराहमी अमल में लाई गई। वेलपुर में वाक़ कैंप दफ्तर रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी के मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा कल्याण लक्ष्मी और सीमारफ दरख्वास्तों पर की दस्तखत। वेलपुर में वाक़ कैंप दफ्तर में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ा कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक व सीएम रिलीफ फंड दरख्वास्तों पर दस्तखत की, जिसके तहत आज वेलपुर के कैंप ऑफिस में मुस्तहिक़ीन की कसीर तादाद नजर आने की वजह से अवाम की हलचल नजर आई। वेमपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए कंटी वेलगो प्रोग्राम का मुब्काल मंडल की प्रजा परिषद सदर सामा पद्मा वेंकट रेड्डी ने किया इफ्तिताह। वेमपल्ली देहात में हुकूमत की जानिब से खुसूसी तौर पर मुतारफ करदा कंटी वेलगो प्रोग्राम का मुब्काल मंडल सदर रामा पद्मा वेंकट रेड्डी, ZPTC बदन नरसा रेड्डी, मौजे के सरपंच मल्ला भाई गंगाधर ने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले कई प्रोग्राम के तहत आंखों के अमराज में मुब्तला अफराद को टेस्ट करते हुए मुफ्त चश्मा व अद्वियात की फराहमी अमल में लाने का इजहार करते हुए मुकामी अवाम को सहूलियात से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश इस प्रोग्राम में PSCS चेयरमैन जे राजेश्वर, MPTC जोशी वेंकटराज, रैतु समन्वय समिति सदर मुत्तना, मंडल प्रजा परिषद ओहदेदार M दामोदर, सेक्रेटरी राज्य लक्ष्मी, तिब्बी अमला पवन श्रावंती, ANM विमला, सुपरवाइजर वानी, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, वार्ड मेंबरान, युवजन संगम के खादिन, महिला संगम के नुमाइंदे, ग्राम पंचायत मुलाजिम व मुकामी अवाम ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बालकोंडा हल्का असम्बली में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने तूफानी दौरा करते हुए फौत होने वाले कायदीन के पुराने खानदान से मुलाकात करते हुए सियाम पुरसा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी निजामाबाद का मशावरती इजलास हज 2023 के लिए फॉर्म की खानापुरी करवाले फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुतय्यन। मज़ीद तफसीलात के लिए दफ्तर हज सोसाइटी जिले निजामाबाद मुस्तैद पुरे से हासिल करें, जिम्मेदारान की अपील। शहर निजामाबाद के तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल व कॉलेज का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविलियन पद्मावती ने अचानक तनसी अमल में खानगी कॉलेज के बिलमुकाबिल गवर्नमेंट कॉलेज में बेहतरीन नताज हासिल करने का कामरेड्डी गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की सालाना तकरीब, मुकामी एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश धतुरे का खिताब। मुसलमानों को गुमराह करने वाले फितनों से अवाम को आगाह करने व इनको बेनकाब करने के लिए हर आलम दीन
आगे आए जमितुलमा जिले सदर हाफिज लई खान 15 फरवरी को बाद नमाज ज़ोहर क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास को कामयाब बनाने की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।